کشمیر ہے، موسم بے مثال بے نظیر ہے، یہ کشمیر ہے، یہ کشمیر ہے۔ آداب، عالمی سمے پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سید عفیفہ۔ اس وقت ہم پیش کر رہے ہیں اپنا خصوصی پروگرام رنگی کشمیر۔ اس ایپیسوڈ میں آپ روبرو ہونے جا رہے ہیں کشمیر کے دارالخلافہ شری نگر میں واقع مقدس درگاہ حضرت بل سے، جہاں محفوظ ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک۔ رنگ کشمیر کے دوسرے سیگمنٹ میں آج ہم بحث کا موضوع ہے وادی کی سنتیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں رنگ کشمیر۔ موسم بے مثال بے نظیر ہے، یہ کشمیر ہے، یہ کشمیر ہے۔ کشمیر کی خوبصورت وادی بے شک ٹورسٹ ہب ہے۔ سیاح یہاں کی دل فریب پرسکون وادیوں میں گھومنے آتے ہیں، لیکن کشمیر گھومنے آئے اور یہاں کی راجدھانی شری نگر میں حضرت بل کی درگاہ میں حاضری نہ دے، یہ ممکن نہیں۔ تو ناظرین، رنگ کشمیر میں آپ ہمارے ساتھ چلیے حضرت بل کی درگاہ۔ یہ ہے کشمیر کی مقدس درگاہ حضرت بل۔ اسے ارض جنت یعنی وادی کشمیر کی خوش نصیبی ہی کہیں گے کہ خدا کے آخری نبی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کا مبارک بال یہاں رکھا ہے، جسے منہ مبارک بھی کہتے ہیں۔ کشمیر کے سابق وزیر اعظم شیخ عبداللہ نے 60 اوائر 70 کی دہائی میں جب حضرت بل کی تعمیر نو کرائی تو مدینہ منورہ کی مسجد کے طرز پر یہاں بڑا گول گنبد تعمیر کروایا۔ اسی لیے اس مقام کو مدینہ الثانی بھی کہا جاتا ہے۔ شری نگر میں کشمیر یونیورسٹی سے آدھا کلومیٹر دور کے فاصلے پر ڈل جھیل کے مغربی کنارے پر واقع اس مدینہ الثانی کی زیارت کرنے سیاح اور زائرین وادی کے مختلف علاقوں کے علاوہ ملک اور بیرون ملک سے بھی آتے ہیں۔ میں نماز پڑھنے آیا اور زیارت کرنے آیا، اچھا لگا مجھے۔ میں کلکتہ سے آیا ہوں، 2 روز ہو گئے مجھے آتے ہوئے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال تھے، اور جس طرح مطلب نور ہر دکھائی دے رہا تھا، وہ مطلب بال دیکھ کر جیسے انسان جیسے جوش میں آیا، اور مطلب ہر عورتیں بچے بوڑھے سب مطلب یہ خوشی کر رہے تھے اسی کے۔ آپ کو کیسا ہوا؟ بہت بہت ہم لوگ تو بھاگ رہے تھے پیچھے پیچھے لوگوں کے کہ شاید نظر آ جائے، کہیں سے نظر آ جائے۔ بہت مزہ آیا، دھوپ میں مطلب کڑی دھوپ میں ایسے کر کے دیکھ رہے، لیکن دیکھ کر بہت خوشی تھی۔ مذہبی عظمت اور تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ حضرت بل کی درگاہ نے کشمیر کی سماجی اور ثقافتی تبدیلی میں بھی اہم رول ادا کیا ہے۔ یہاں کی روحانی قوس و قزح میں ایک مقدس رنگ بھر کر سال میں تقریباً 6 مرتبہ حضرت کی نشانی کے دیدار کرائے جاتے ہیں۔ زیارت اور نماز ادا کرنے کے ساتھ لوگ اپنے عزیزوں کے لیے بطور تبرک کچھ خریداری بھی کر لیتے ہیں۔ ان دنوں تو یہاں 12 مہینے میلہ سا لگا رہتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر بہت کچھ ہے خرید و فروخت کے لیے۔ اسے درگاہوں کی برکت کہیے کہ بہت سے لوگوں کی روزی روٹی بھی جڑی ہے اس آستانے سے۔ وہ یقین سے لیتے ہیں یہاں کے تبرک ادھر سے، ہاں وہ گھر میں دیتے ہیں اور ہمسایہ ہوتے ہیں ان کو بیچتے ہیں۔ یہ ہم نے لایا درگاہ سے تبرک جناب۔ لیکن آپ کی بات کریں تو آپ کتنے سالوں سے اس مجھے جناب اس کو ہو گیا 50 سال کم سے کم۔ حضرت بل کی تاریخ بھی کم دلچسپ نہیں ہے۔ اس عمارت کی تعمیر تو شاہجہاں کے صوبیدار ساتقین تہرانی نے 1623 میں مغل بادشاہ کے قیام کی غرض سے ایک عمارت عشرت محل کے نام سے تعمیر کرائی تھی، لیکن شاہجہاں جب 1624 میں یہاں آیا تو خدا جانے کس روحانی کشش کا اسے احساس ہوگا کہ مغل حکمران نے شاہی عشرت محل کے بجائے اس خوبصورت عمارت کو ایک عبادت گاہ قرار دیا۔ پھر 1699 میں اورنگزیب کے زمانے میں حضرت کا منہ مبارک یہاں لانے کے بعد اس سرزمین کی روحانیت ثابت ہو گئی۔ منہ مبارک کے یہاں آنے کے بعد یہ عبادت گاہ حضرت بل کہلائی جانے لگی۔ 1699 میں 1699 عیسوی میں یہ نور الدین اشوری صاحب نے یہاں لایا، اور اس وقت انہوں نے یہاں زیارت حضرت بہاؤالدین نقشبند مشکل کشا
ख्वाजा बाजार में इसको रखा गया। तारीख पर नजर डालें तो मदीना मुनव्वरा के मुतवली सैयद हजरत अब्दुल्ला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 तबरुकात यहाँ लाए थे, जिनमें मुए मुबारक भी था। 1636 में अंदरूनी इंतशार के सबब सैयद साहब को यहाँ से निकालना पड़ा। उनके साथ ये तबरुकात भी, जिनमें सफर करते हुए वो बीजापुर पहुंचे। उनकी वफात के बाद ये तबरुकात उनके बेटे सैयद हामिद के पास आए। इसी दौरान कश्मीर के एक ताजिर ख्वाजा नूरुद्दीन अशवरी सैयद हामिद के राब्ते में आए। कश्मीर जाने से कबल नूरुद्दीन ने सैयद हामिद से इल्तिजा की कि कश्मीर के लिए वो उन्हें एक तबरुक दे दे। सैयद साहब ने इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें ख्वाब में बशारत हुई कि हुजूर पाक उसे मुए मुबारक देने के लिए कह रहे हैं। अब इनकार का सवाल ही नहीं था। खुद हुजूर ने इशारा दे दिया कि उनकी यह निशानी तबरुक के तौर पर वादी कश्मीर ले जाई जाए, लेकिन इस नेक काम में आग रखना और पड़ा। ख्वाजा नूरुद्दीन लाहौर के रास्ते सफर कर रहे थे कि औरंगजेब को इतला मिली। औरंगजेब ने ख्वाजा नूरुद्दीन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और मुए मुबारक को ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह अजमेर में रखा गया। ख्वाजा नूरुद्दीन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और लाहौर में उनका इंतकाल हो गया। कहते हैं कि हुजूर औरंगजेब के ख्वाब में आए और अपनी इस निशानी को कश्मीर भेजने का हुक्म दिया। ये रज़ाए पैगंबर थी, फिर किसी शाह की क्या मजाल। गरज औरंगजेब के हुक्म से एक संदल के बक्स में बंद करके खास डोली में कश्मीर रवाना किया गया। साथ ही ख्वाजा नूरुद्दीन का जस्त खाकी कश्मीर भेजने का हुक्म हुआ। खुद औरंगजेब और उसके बुजरा लाहौर के बाहर तक कारवां के साथ चले। सबों का दिल मोह लेता था। तो जब यहाँ उस वक्त शाही जहां का विरोध हुआ तो वो ये जब यहाँ आया तो डल के किनारे जब उसने ये हसीन और खूबसूरत ये महलनुमा इमारत देखी तो जब वो अंदर गया तो काफी मुतासिर हुआ और उसने इनको कहा इसका नाम इशरत महल नहीं होना चाहिए, ये कोई इबादत गाह होना चाहिए। एक माह बाद 5 अप्रैल 1700 में जब ये कारवां कश्मीर पहुंचा तो कुर्ब जवार के लोग श्रीनगर नंगे पांव पहुंचे। पहले मुए मुबारक को ख्वाजा बाजार में वाक़े लक्ष्मण साहब के आस्ताने आलिया में रखा गया। जब मुए मुबारक की एक झलक पाने के लिए ज़ायरीन के लिए ये जगह नाकाफी साबित हुई तो इसे सादकाबाद के उसी इशरत महल में रखा गया जिसे शाहजहां ने इबादतगाह करार दिया था। औरंगजेब के शाही फरमान के मुताबिक नूरुद्दीन असवरी के दामाद बलिक भांडे को इसका मुंतजिम मुकर्रर किया और ज़ायरीन को मुए मुबारक की ज़ियारत कराने की जिम्मेदारी शेख मोहम्मद रादो चिश्ती को सौंपी गई। 350 बरस से हम यहाँ रहते हैं। हमारे जो आबाद थे वो यहाँ खिदमतगार थे, पीर साहब थे। तो यहाँ औरंगजेब के ज़माने से यहाँ ये मोई मुक़द्दस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा है। तो यहाँ इसको हम मदीना सानी कहा जाता है, क्योंकि जो मदीना नहीं जा सकते हैं कश्मीर के लोग, खुसूसन गरीब लोग, वो अपने अकीदत से यहाँ आते हैं ये समझ के कि यहाँ हुजूर का मोई मुक़द्दस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले मुए मुबारक की ज़ियारत साल में 2 मरतबा कराई जाती थी, एक हजरत के यौम पैदाइश यानी मिलादुल नबी पर और दूसरे शब मिराज के मौके पर। बाद में हुजूर पाक के तई लोगों की मोहब्बत को देखते हुए पैगम्बर इस्लाम के चारों खुलफा के उर्स के मौके पर भी मुक़द्दस निशानी के दीदार कराए जाने लगे। यहाँ पे हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोई मुक़द्दस तशरीफ़ फरमा हुआ है और इसकी ज़ियारत जो है साल में सिर्फ 10 दिन होती है। खुसूसन ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन दिनों में यहाँ पे 3 दिन इस बाल मुबारक की ज़ियारत होती है। शब महराज पे भी 3 दिन इस बाल मुबारक की ज़ियारत होती है। तो खुसूसन जो शब महराज का आखिरी जुमा होता है उस समय में यहाँ पे तकरीबन लाखों की तादाद में मर्द और औरतें एक साथ में नमाज पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोई मुक़द्दस के बाल मुबारक की ज़ियारत से फैज़ाब हो जाते हैं। हजरत बल के कुशादा हाल में हर जुमे को बड़ी तादाद में मुसलमान नमाज अदा करते हैं। इसमें ख्वातीन ज़ायरीन भी बड़ी तादाद में आती हैं, लिहाजा मुक़द्दस दरगाह में ख्वातीन के लिए नमाज और ज़ियारत का भी खास एहतमाम है। हर तरफ के सलाम और दुरूद की सदाएं बुलंद रहती हैं।
रंगे कश्मीर में हम नाजरीन आपको दिखा रहे थे मुकद्दस जियारतगाह हजरत बल की तस्वीर और बात कर रहे थे मुए मुबारक की अजमत की। इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे वादी की कई छोटी बड़ी सनतों के बारे में। आप देखते रहिए आलमी समय। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कश्मीर समर फेस्टिवल 2014 में लुत्फ अंदोज होने के लिए पुकार रही हैं कश्मीर की वादियां। 21 जून से 29 जून तक मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, कश्मीर है। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। ब्रेक के बाद आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम रंगे कश्मीर और प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में आज हम बात करेंगे कश्मीर की माइक्रो और मिडिल इंडस्ट्रीज की और यहाँ की मकामी सनतों से मुतालिक मुख्तलिफ शोबों के मसाइल की। कश्मीर के बाशिंदों की रोजी रोटी किसी न किसी सनत से जुड़ी हुई है, मसलन फर्नीचर, स्टील, स्पोर्ट्स गुड्स, वुलन इंडस्ट्री वगैरह। लेकिन गुज़िश्ता 25 सालों के दौरान यहाँ के सियासी हालात ने सनतों के बुनियादी ढांचे को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मरकज से मिलने वाली सब्सिडीज का खातिर ख्वाह फायदा कश्मीर की सनतों को क्यों नहीं मिल सका, बावजूद इसके कि ये सेक्टर एक अंदाजे के मुताबिक सरकार को 700 करोड़ रुपए सालाना अदा करता है। ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर हमारे नुमाइंदे सनन तसद्दुक ने फेडरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कश्मीर के सदर और इस इंडस्ट्री से जुड़े कुछ अहम लोगों से बात की। आलमी समय के इस सेगमेंट में आपका खैर मकदम है और खैर मकदम करना चाहूंगा मेरे साथ आज के मेरे मेहमानों का। कश्मीर में रहे नामसाइद हालात के कारण जिंदगी का हर शोबा मुतासर हुआ और वहीं यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है वो भी इससे अछूते नहीं रहे। क्या सिर्फ यहाँ के नामसाइद हालात ही जिम्मेवार रहे इस के पीछे या कुछ और भी वजूहात है? ये सब कुछ जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है यहाँ के इंडस्ट्री से जुड़े लोग और इनसे इनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत हम यहाँ पे करेंगे FCIK के प्रेसिडेंट मीर साहब से। अशरफ साहब, आपसे पहले जानना चाहूंगा जो यहाँ पे जो हालात रहे या जो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो कैसे ये शोबा मुतासर हुआ? क्या सिर्फ हालात ही इसके पीछे जिम्मेवार है कि या कुछ और भी वजूहात है? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान की आज़ादी 47 में जब हुई तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक नारा लगाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो पूरे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक प्रोग्राम शुरू हो गया। हमारी J&K स्टेट में ये प्रोग्राम पीछे रहा, वजह इसकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पहले रही। 47 से लेके अप टू 74 यहाँ अनसर्टेनिटी रही, हुकूमतें आती जाती रही, लेकिन कोई किसी ने कोई काम नहीं चाहा करने के लिए। अल्टीमेटली 75 के अकॉर्ड में
लोगों को लगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि नहीं, कश्मीर का फैसला शायद हो गया है और यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई। लेकिन ये इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ 11 साल के वक्फे तक ही महदूद रही, जो कि एक इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत कम समय है, कम टाइम है। 11 साल के टाइम में इंडस्ट्री प्रोग्रेस नहीं कर पाई, 4-5 साल इन्फेंसी के होते हैं और 89 का टर्मोइल शुरू हो गया। 89 के टर्मोइल शुरू होते ही यहाँ के हालात बहुत खराब हो गए। जो यहाँ पे लेबर बाहर से आती थी, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, वो यहाँ से वापस चली गई, कारखाने बंद हो गए, कुछ तो हालात इतने खराब हो गए कि लेबर चली गई, और जो कुछ बाकी कुछ कारखाने, जो बड़े बड़े कारखाने यहाँ थे और जो छोटे छोटे भी कुछ, उनमें सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म्ड फोर्स आके घुस गई। अंधाधुंध कब्जा हो गया, मशीनें तोड़ दी गई, कारखानों की बिजली उन्होंने हमारे मतलब बाय डेबिट टू आवर अकाउंट उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और हमारे खाते में डालते गए। वजह यह होगा कि जो कुछ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ उस 11 साल में हुई थी, वो बिल्कुल इट केम टू ए स्टैंड स्टिल, सब कुछ बंद हो गया। ये पहला एक वजह थी कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो थी, उसके बाद नामसाइद हालात, उसके बाद गवर्नमेंट का अप्रोच। हमारी स्टेट में जो हमारी जे.एंड.के स्टेट है, इसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के ने भी बहुत ही अच्छी एक पॉलिसी दी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी बहुत अच्छी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में इतने हिकअप्स हैं कि ये ऑन बोर्ड ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन ये ऊपर नहीं उठ रही है, और उस पॉलिसी की वजह से हमारी जे.एंड.के स्टेट की खाली 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, और बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो पुंछ राजौरी हो, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ हो, चाहे वो कश्मीर एज अ होल कश्मीर प्रोविंस एज अ होल, ये इंडस्ट्रियल मैप पे कहीं आ नहीं पाया। ये वजह है इंडस्ट्रियल सिकनेस की, और सिकनेस को वापस रिवाइव करने के लिए इन यूनिट्स के गवर्नमेंट के इकदाम की जरूरत है, गवर्नमेंट के ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जो अभी तक नहीं उठ पा रहे हैं। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के ठोस इकदाम की ज़रूरत है। और क्या कुछ यहाँ पे जो अगर हम बात करें, जो यहाँ पे एक जो रॉ मटेरियल है उसकी पूरी तरह से यहाँ नहीं मिल पा रहा है, और वहीं रही सही कसर जो बिजली है, यहाँ जो बिजली नहीं रहती है, वो भी एक अच्छा खासा रोल इसके पीछे निभाती है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि बिजली के वजह से या बाकी जो रॉ मटेरियल दस्तियाब न होने की वजह से कितना प्रॉब्लम है आपके इंडस्ट्रियल यूनिट्स को? बिजली न होने की वजह से तो ही यहाँ पे इंडस्ट्री हमारी आज तक खराब हुई है। बिजली की पैदावार तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है आज तक। और जो पानी के वसाइल हमारे पास हैं, उनसे जो बिजली पैदा होती है वो तो सारा कुछ नॉर्दर्न ग्रिड के पास ही जाता है। तो हम हमेशा इसी पे डिपेंड रहते हैं कि वो पावर सप्लाई जो वहाँ से आती है, हमारी इंडस्ट्रीज उसी से फलती फूलती। लेकिन कुछ खराबी की वजह से या ऐसे हालात यहाँ पे हुए हमारे कश्मीर में कि आज तक न बिजली का ही मसला हुआ, न इंडस्ट्री पनप उठी। तो इस वजह से हमारी इंडस्ट्री फ्लोरिश ना हो सकी, और कुछ अपने वजूहात, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तवज्जो न मिलने से हमारी इंडस्ट्री आज तक बिल्कुल शम्बल्स में ही रही। तो जो आप अभी हमारे अशरफ साहब कह रहे थे कि रॉ मटेरियल तो हमारा सारा बाहर से ही आता है, उसी पे हमारा इंडस्ट्री डिपेंड करता है। वो भी रोड कनेक्टिविटी की वजह से 6-7 महीने के लिए तो गवर्नमेंट में ही रहती है मौसम की खराबी की वजह से। तो इसलिए हम गवर्नमेंट पे ही तकिया करते थे। उन्होंने कुछ इदारे ऐसे यहाँ पे कायम किए थे जिनसे हमें रॉ मटेरियल मिलने की तवक्का रहती है, लेकिन पूरी तरह वो डिपार्टमेंट्स भी उस पर उतरते नहीं है, वो कर नहीं सकते हैं उसको। जो रॉ मटेरियल हम चाहते हैं वो पूरी तरह हमको मिलता नहीं है। क्या वजूहत मान रहे हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए?
वजूहत उसमें बहुत सारे हैं। देखिए इसमें वजूहत सबसे बड़ी वजूहत ये है कि ये तो दो किस्म के पैकेज है। एक पैकेज हमारा पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स, उसका तो मैंने आपको बता दिया कि पॉलिसी में एक फला था जो हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी वो पैकेज हमने जम्मू में वापस दे दिया, उनको वापस दे दिया कि जनाब इससे हमारी इनइक्वलिटी ही यहाँ पर हो गई स्टेट में, इससे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाई। उसके बाद जो स्टेट की हमारी अपनी पॉलिसी जो रिहेबिलिटेशन पर जब हम बात करें, क्योंकि हमारा जो इस वक्त ज़्यादातर फोकस है रिहेबिलिटेशन के ऊपर, हमारे कारखाने बिल्कुल बंद पड़े हैं, हमारे जो एसेट्स है ब्लॉकेड एसेट्स, करोड़ ऑफ रुपीज़, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज़ हमारे पास ब्लॉकेड एसेट्स है, उनको रिवाइव करने के लिए जो स्टेट ने पॉलिसी दी थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पिछले तकरीबन 15 साल में हमारे जो रिहेबिलिटेशन मेजर्स लिए गए 38 यूनिट्स के, 38 यूनिट्स को जिन्होंने अपना रिवाइवल प्लान तो हमने काफ़ी दे दिए, तकरीबन 400-500 लोगों ने रिवाइवल प्लान दे दिए, मगर जो रिहेबिलिटेशन मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू स्टेट लेवल रिहेबिलिटेशन कमेटी वगैरह, उसमें 38 यूनिट्स के करीब उनको रिहेबिलिटेशन मेजर्स लिए गए और वो भी इम्प्लीमेंट पूरे तरीके से नहीं हो पाए। बहुत सारी वजह उसमें हमारे ओल्ड ये लाइबिलिटीज है जो उस पर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना छोड़ना है, किसको छोड़ना है, उस पर लड़ाई है। फिर आगे कितना फाइनेंस दे, कितना नहीं देना है, जो आज से 15 साल पहले वायबल प्रोजेक्ट हमारा था, आज की डेट में वो वायबल नहीं है। अब नया जब वो अपनी नई प्रोजेक्शंस दे रहे हैं तो उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इसमें सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स उसमें बहुत हद तक है। बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स न होने के कारण ये भरपाई यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पूरी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे रहे हालात की वजह से यहाँ पे जो हालात रहे उन्होंने कमर तोड़ के रख दी पूरा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है इसको। और यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का टास्क फोर्स भी बना था, उसमें जो रिकमेंडेशंस थी वो क्या थी, और जो आपकी ओर से रिकमेंडेशंस थी कि जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की बात हो या जो इन सिक यूनिट्स को फिर से पटरी पे लाने की बात हो, तो क्या थी? सबसे जो अहम चीज़ है ये पटरी पे लाने के लिए, उसके लिए सियासी हालात जो हैं कंडीसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज तक जो भी पैकेजेस निकाले गए वो पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर हमने देखा, प्रूव हुआ कि जो उन्होंने किया उसमें इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बिल्कुल जीरो के बराबर था। और जब भी उन्होंने एक ही बार नहीं, हमारे अशरफ साहब से पहले भी जितने भी प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनकी वो भी गए, लाए, बहुत पब्लिसिटी तशहीर हुई खूब, लेकिन विल जो है ना, असली जो विल होनी चाहिए कि ये मसला है इसको प्लग करना चाहिए, जहां ही लूप होले वहां प्लग होना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। सबसे अहम चीज जो है, हमें जो नामसाइद हालात हैं किस वजह से हुए और जिस वजह उसको जो लोग अभी पिछले हफ्ते ही देखो 6 दिन के बाद आज हम फैक्ट्री में गए, 5 दिन हड़ताल, ये ना कर्फ्यू रहा गवर्नमेंट की तरफ से। मेरा इंडस्ट्रियल यूनिट इंडस्ट्रियल एस्टेट बागेल मर्दान की मैं बात कर रहा हूँ, 6 दिन के बाद आज उधर ये हमारे वर्कर पहुंच पाए। उनका देख लीजिए 5 दिन के उन पर भी कौन सी मुसीबत पड़ी और हमें भी कौन सी मुसीबत। ये आज उनके हिसाब से अच्छे हालात है, ये आप भी मान रहे हैं कि आज हालात आपके हिसाब से अच्छे हैं। जब आज के दिन मैं कहता हूँ 1 हफ्ते के बाद हमने इंडस्ट्री एस्टेट का दरवाजा खोला, तो आप उस वक्त की बात है 90 से आज तक 20 साल, मेरे ख्याल में दुनिया में कोई भी जगह नहीं होगी जो इन हालात का ऐसे मुकाबला कर सकते हैं। ये हमारा कलीजा है, जो हमारे यूनिट होल्डर है, गोलियों में भी गोलियों का सामना करके फिर भी प्रोडक्शन निकाल रहे हैं जितना ही हुआ, क्योंकि खाना है शाम, कम से कम दिन को मेहनत करके शाम के वक्त की रोटी कम से कम उनको मिलनी चाहिए, उतना वो कर पाए इन टर्मोइल पीरियड में। लेकिन क्या मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जो जिनकी हुकूमत आज तक थी, ये 10 साल जिन्होंने ये काम किया हमारी इस नए पैकेज पर, क्या उन्होंने इसमें देखा, रिवाइव किया कि ये पैकेज उनको जो हमने दिया ये इम्प्लीमेंट हुआ? क्या उनको ये फिक्र लाहक हुई कि अगर ये लोग जो बेकारी नए जो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स को ला रहे हैं कि नहीं हमारे पास नौकरी नहीं है, आप इंडस्ट्रियल यूनिट लगाए,
اور کون سا انہوں نے جو جادوئی چراغ ادھر جلایا کہ ان کو وہ اٹریکٹ کر لیتے جو کنڈیسو نئے جو پراسپیکٹ انٹرپرینرز ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ایک انٹرپرینر اٹھ گیا کسی الیکشن جلسے میں اٹھ گیا چیف منسٹر کو کہنے کے لیے کہ 3 سال مجھے ہو گئے, یہ ایک وہ منرل واٹر کا کوئی مسئلہ تھا, اس کا انڈسٹری لگایا, اس سے اپنا پیسہ لگایا تھا, لیکن لون اس کا وہ ڈسبرس نہیں ہوا, جس پر ایک وزیر نے اس کو تھپڑ لگایا. یہ اس کے ساتھ یہ حالات ہے. اب کہاں, جب ویسے بھی ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, اب جہاں وہ وداؤٹ پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس کا, وہ گیا ان کو اور اس کو آپ کے ٹی وی کے سامنے انہوں نے تھپڑ رسید کیا. تو ان حالات میں کون آئے گا یہ انڈسٹری میں؟ مجھے بتائیے اب اس کو کیا ضرورت ہے کھلے دل سے. جی بالکل, یہاں پہ ہمیں ہیلپ کریں, ہمیں وہ سبسڈی نہیں چاہیے, سبسڈی سے کوئی یہ یونٹ کھڑا نہیں ہوتا, لیکن ان کو وہ معاونے چاہیے, مارکیٹنگ کی ضرورت ہے, را میٹیریل فراوانی اس کی ہونی چاہیے. اور یہ جو جتنے بھی جو بے روزگار یونٹ ہے, نئے ہیں یا پرانے ہیں, دیکھو پرانے یونٹ ہولڈر کا دیکھو کتنا کلیجا ہے. اب جو ناکام ہوا انہوں نے بیچاروں نے اپنی ساری پونجی لگائی اس کو بیچ دیا, پھر دوسرا یونٹ آ گیا وہ چلا رہا ہے اس وقت, لیکن اس میں بھی ابھی کون سی اس کے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ حالات ٹھیک ہو گئے. جی بالکل, سبسڈی نہیں چاہیے, بلکہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو را مٹیریل اور باقی جو فیسلٹیشنز ہیں وہ ملنی چاہیے. یہاں پہ پھر سے ایک بار میں اشرف صاحب کے پاس جانا چاہوں گا, یہاں پہ ان سے پوچھنا چاہوں گا جو ہمارا یہاں پہ اسکوپ جو ہے اس انڈسٹریل سیکٹر میں وہ کتنا ہے, اور کتنا جو ہمارا ان امپلائمنٹ کی پرابلم ہے اس کو کس حد تک ہم دور کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا جو ہمارے بینکس ہیں جو اس طرح کے جو انسینٹیو جو جہاں پہ لونز یا باقی فیسلٹیشنز کی ضرورت پڑتی ہے اس میں کہاں بینکس کا رول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک ان امپلائمنٹ پرابلم جو ہماری اسٹیٹ کو لاحق ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے انڈسٹریلائزیشن از دا اونلی سولوشن. اگر آپ انڈسٹریلائزیشن کو بڑھاوا دیتے ہیں آپ کی ان امپلائمنٹ پرابلم خود بخود حل ہو جاتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس انڈسٹریلائزیشن کو جیسا کہ معراج صاحب نے کہا, ہمارے سینئر کلیگ نے کہا کہ ہمیں سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں آپ پوسٹ پروڈکٹیو انسینٹیو دے دیجیے, جو آدمی کام کر رہا ہے اس کو انسینٹیو دے دیجیے, تو ایک پش لگے گا ہماری انڈسٹری کو. دوسری بات, جو بینکس ہے ہماری اسٹیٹ میں, جے کے اسٹیٹ کی انڈسٹریز کے لیے کنٹری کا سب سے زیادہ ریٹ آف انٹرسٹ لگا رہے ہیں. ہم نے گورنمنٹ سے کتنی بار یہ ریکویسٹ کی, ہم نے چیئرمین جے کے بینک سے یہ ریکویسٹ کی کہ اس انڈسٹری کو جو پچھلی 20-22 سال سے بدحالی کا شکار ہے ہمیں انٹرسٹ سبوینشن 1-2% زیادہ نہیں ہم مانگ رہے ہیں. جہاں آپ 1000 کروڑ کا منافع دکھا رہے ہیں وہاں 2-4 کروڑ روپے کا سبوینشن دینے سے کوئی آپ کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن ایک انڈسٹریلائزیشن کے تئیں یہ آپ کا ایک گڈ ول گیسچر ہو سکتا ہے. یہ کیجیے, نہیں ہو پا رہا ہے کچھ بھی. جو انڈسٹری تباہ حالی کا شکار ہے اس میں میجر جو رول ہے اٹھانے کا گورنمنٹ کا بنتا ہے, اور گورنمنٹ جب تک ساتھ نہیں دے گی اس میں آئی ڈونٹ تھنک ول ہیو مچ ٹو ڈو. جی بالکل, جب تک سرکار سیریسلی نہیں آگے بڑھتی ہے تب تک کچھ آگے نہیں بڑھا جا سکتا ہے. آپ سے جاننا چاہوں گا, جیسے میری ابھی بات ہوئی تھی تو جو پرائم منسٹر کا ٹاسک فورس بنا تھا تو اس میں جو ریکمنڈیشنز آپ کی اور سے تھی یا وہاں سے جو آپ کو پیکیج ملا تھا وہ کیا تھا اور اس کا کیا بنا؟ سب سے پہلے جو پیکیج بنا تھا اس میں انہوں نے رکھا تھا کارپس 100 کروڑ کا. 100 کروڑ کا مطلب یہ تھا کہ جتنی بھی یہاں بھی سکھ انڈسٹری ہوئی ہے ان کو بینیفٹ مل جائے اس میں, تاکہ جتنی انڈسٹریز یہاں آئی ہوئی ہے بیٹھی ہوئی ہے کام نہیں کر رہے اس میں ان کا فائدہ ملا. لیکن کیا ہوا, ریکمنڈیشن تو ہو گئی لیکن اپروول بھی مل گیا پرائم منسٹر کی طرف سے, لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ڈراپ کیا گیا, وہ ایشو ڈراپ کیا گیا. اسی طرح سے بہت سارے ایشوز بھی تھے اس میں, مطلب جس میں یہ تھا کہ انٹرسٹ فری لون مل جائے یہاں کی جو ریہیبلیٹیٹ مطلب بیکار یونٹ پڑے ہیں جو سکھ ہو چکے ہیں پچھلے 20 سال سے, تو وہ بھی نہیں ملا پھر. اور اس طرح سے کرتے کرتے سارے جو یہ انسینٹیو تھے وہ بیکار ہو گئے. ایک اور انسینٹیو تھا ہمارا 47 انڈ جو اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے تھا, اس میں یہ تھا کہ جتنے بھی یونٹس یہاں بیکار ہو گئے ہیں یا ریہیبلیٹیٹ ہونا ہے ان کو, ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ بینک ان کو سامنے آئے,
बैंक की तरफ से उनको पैसा मिले, लेकिन उसमें भी कुछ लूप होल्स थे, वो लूप होल्स कवर नहीं हो गए और इस तरह से कुछ इंडस्ट्री को मिला, फायदा मिला, लेकिन किसी हद तक बहुत कम मिला। जैसे यहाँ पे मेरे साथ आज के मेहमान थे, उनका ये कहना था कि जो मरकज से लेके रियासत तक जितना भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, हालांकि सरकारों ने पैकेजेस की अनाउंसमेंट की, लेकिन उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और वहीं अगर बैंक्स का रोल है वो भी मुनाफी यहाँ पे देखने को मिला। और वहीं अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट का ज्यादा शिकार है, और अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए तो शायद जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको किसी हद तक दूर किया जा सकता है। यहाँ पे आज मेरे साथ जितने मेहमान थे उनका शुक्रिया अदा करूंगा, और आज बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी और मुद्दे पे फिर होगी खास बात, तब तक हमें दे दीजिए इजाजत। नाजरीन, रंगे कश्मीर में आज बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। लॉग इन करें हमारी वेबसाइट samaylive.com पर।